Hi everyone, this is Imani Kalra, team member from Lexus & Company. So continuing the same topic, we were on Rule 17, completed the Rule 17. So now we will do Rule 18 of Order 5. That was issue and service of summons. So Rule 18, endorsement of time and manner of service. Endorsement of time and manner of service में ये कहता है the service officer जो सर्विस कर रहा है समन की shall in all cases in which the summons has been served हर केसेस में where summon has been served under rule 16 under rule 16 अगर summon serve हो रहे हैं rule 16 was person served to sign acknowledgement. So endorse or annex or cause to be endorsed or annexed or onto the original summon or to the original summon a return stating the time when and the manner in which the summon was served. वो बताएंगे कि किस टाइम पे उन्होंने summon को serve किया है और किस manner में उसको serve किया and the name and the address of the person if any identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summon. किसको आपने summon भेजा एड्रेस क्या था उसका तो आपको उन सारी चीजों को मेंशन करना इट्स नेसेसरी. So that was rule 18. Now rule 19, examination of serving officer. उनका examination कैसे होगा? Where a summon is returned under rule 17. If under rule 17, 17 was procedure when defendant refuses to accept service or cannot be found. If the defendant मिलता नहीं है हमें वहां पर या वो refuse कर देते हैं to accept the summons, तो examination कैसे होगा service officer का? Where a summon is returned under Rule 17, the court shall, if the return under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer, and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath. अब court क्या करेगा? Where a summon is returned under Rule 17 में अगर वो वापस आया है, the court shall, if the return under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer, अगर वो verified नहीं है कि वो कैसे आया, and if verified है भी, examine the serving officer को oath के लिए बोलेंगे वहां पर उस टाइम पे और cause him to be examined by another court. कोई another court भी उसको examine कर सकता है, proceedings देख सकता है, may make such further inquiry in the matter as it thinks fit. अगर कोर्ट को कुछ ऐसा ना लगे कि इन्होंने जान के नहीं किया या बाय एनी अदर रीजन वहां तक नहीं पहुंचा तो शायद इधर डिक्लेयर दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड या फिर जिस भी तरह से समन सर्व हुए या ऑर्डर कर देंगे कि हाँ इस रीजन से वो सर्विस नहीं हो पाई. 19A simultaneously issue of summons for service by post in addition to personal services repeat. ये रिपीट हो चुका है हमारा रूल. Now rule 20 substituted service में क्या होता है where the court is satisfied there is a reason to believe उनके पास रीजन है बिलीव करने का that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service कि डिफेंडेंट जानबूझकर इस चीज से भाग रहा है या वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा और दैट फॉर एनी अदर रीजन या कोई और रीजन है द समन कैन नॉट बी सर्व इन द ऑर्डिनरी वे में वो समन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा द कोर्ट शैल ऑर्डर द समन टू बी सर्व बाय अफिक्सिंग अ कॉपी. समन के साथ एक कॉपी भी जाएगी देयर ऑफ इन सम conspicuous place in the courthouse and also upon some conspicuous part of the house if any in which the defendant is known to have last resided वहां तक भेजेंगी और कैरिड ऑन बिजनेस कहीं वो बिजनेस करता है कुछ तो कोर्ट वहां पर एक अपने ऑर्डर द समन के साथ साथ एक वहां पर ऑर्डिनरी वे में भेजने की कोशिश करेंगी. 1A वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल 1 में ऑर्डर सर्विस बाय एडवर्टीजमेंट या वो एडवर्टीजमेंट कर देगी न्यूज़पेपर में ताकि उस तक पहुंच पाए. द न्यूज़पेपर शैल बी अ डेली न्यूज़पेपर जो लोकेलिटी में रोज जाता हो उस जगह की इन विच द डिफेंडेंट इज लास्ट नोन. डिफेंडेंट का लास्ट हाउस हो सकता है या लास्ट वर्क प्लेस हो सकता है एनीथिंग इट कैन बी एंड नोन टू हैव एक्चुअली वॉलंटरली resided जहां पर वो रहता था carried on business or any personal work for the gain purpose. Now rule 20 clause 2 effect of substituted service का क्या इफेक्ट रहता है? Substituted by order of the court shall be effectual as if it has been made on the defendant personally. मतलब डिफेंडेंट के ऊपर पर्सनली ये पूरी चीज इफेक्ट करती है कि हाँ आपको कोर्ट में बुलाया गया है तो सब्स्टिट्यूटली आपको वहां पर पहुंचना है. क्लॉज 3 वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स. अब यहाँ से सर्विस हो चुकी है तो अब टाइम भी फिक्स करा जाता है फॉर द अपीयरेंस. वेयर सर्विस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट as the case may require. There is a specific time has been mentioned here, so it depends upon the court or it depends upon the case कि case को कितने time चाहिए defendant की presence के लिए. 20A is also repealed. So now rule 21 service of summon where defendant resides within jurisdiction of another court. समन की सर्विस कैसे होगी? Where defendant resides within jurisdiction of another court.
जैसे इस कोर्ट में ये केस था बट किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रहता है, तो अ समन मे बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज इशूड वेदर विद इन और विदाउट द स्टेट, इधर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर, ऑफिसर के थ्रू भेजा जाएगा वहां पर, और बाय पोस्ट, बाय कुरियर सर्विसेज जो भी हाई कोर्ट ने अप्रूवल दिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और बाय एनी मीन्स वो वहां तक जाएगा, हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट राइट डिसाइड्स, जहां पर डिफेंडेंट रहता है वहां तक हम उसको भेजेंगे। A summon may be sent by the court by which it is issued whether within or without the state। अब जरूरी नहीं है कि वो इशू तो यहीं से होगा बट उस तक वो पहुंच जाएगा। रूल 22 सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन्स इशूड बाय कोर्ट्स आउटसाइड। अब किसी प्रेसिडेंसी टाउन में रहते हैं, वेयर समन इशूड बाय एनी कोर्ट established beyond the limits of the towns of Calcutta, Madras and Bombay, these are the presidency towns, is to be served within any such limits। ठीक है, only the it shall be sent to the court of small causes within whose jurisdiction it is to be served। तो इनके अलावा वो किसी भी जगह पे जाकर समन को सर्व कर देंगे। रूल 23 ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट, जिसके थ्रू समन जहाँ पे भेजा जा रहा है उसकी क्या ड्यूटी है। द कोर्ट टू विच अ समन इज सेंट, 21 और 22 में मैंने बताया ना कि वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, ही इज लिविंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट। So, तो उनकी ड्यूटी क्या रहेगी, द कोर्ट टू विच समन इज सेंट अंडर रूल 21 और रूल 22 शैल अपॉन रिसीट देयर ऑफ प्रोसीड as it has been issued by such court। सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली वो भी समन की सर्विस करेंगे जैसे कि उन्होंने ही इसको इशू किया है, एंड शैल रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड, कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग होती है तो वो सारा रिकॉर्ड भी आगे देंगे। Now rule 24 services on defendant in prison। अब defendant already prison में है तो उसको service कैसे होगी। Where the defendant is confined in a prison, the summons shall be delivered or sent by post, by fax, by email or by any other means to the officer in charge of the prison for service on the defendant। जो भी उस prison का officer in charge होगा उसको उसकी service करी जाएगी। 25th rule number 25 service where defendant resides out of India and has no agent। Now, if defendant is residing outside India and उसका कोई agent भी नहीं है within your local limits and within your jurisdiction, then what will you do? Where the defendant resides out of India and has no agent in India, empowered to accept service, जो उसकी service को accept कर सके, the summons shall be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him। वहां भेजा जाएगा बाय फैक्स, बाय ईमेल, और जो भी हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। इफ देयर इज पोस्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सच प्लेस एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट, या तो कोई पोस्टल कम्युनिकेशन की थी, और अगर कोर्ट जहाँ पे सिचुएट करता है तो प्रोवाइड, यहाँ पे प्रोविजन में बताया, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सच डिफेंडेंट, अगर वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, तो द समन टुगेदर विद द कॉपी देयर ऑफ मे बी सेंट फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट टू एनी कोर्ट इन दैट कंट्री नॉट बीइंग द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास नहीं जाता, हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स। तो डिफेंडेंट आउट ऑफ इंडिया जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता होगा, वी विल सेंड दिस समन फॉर दैट कोर्ट, हम उसको भेजेंगे उस कोर्ट को ये समन, देन उसके बाद वो उसको आगे भेज देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी सच डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर, if the defendant is a public officer in Bangladesh or Pakistan, not belonging to the Bangladesh, or as the case कोई पाकिस्तान का मिलिट्री ऑफिसर है कुछ भी, और इज सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी या किसी भी लोकल अथॉरिटी का, तो उसको भी समन टुगेदर विद द कॉपी देयर ऑफ मे ही सेंट फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट टू सच ऑफिसर इन द कंट्री, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में बताएगी, उसके अकॉर्डिंगली ये सारा काम किया जाएगा। नाउ रूल 26 service in foreign territory through political agent or court। I will explain this rule in the next video. Thank you so much everyone. Do subscribe to YouTube channel.